লকডাউনের মাঝে দেখো পাবলিকেরই পুড়কি দেখো, বাজার হাট খুলছে দেখো, দোকানেতে ভিড় দেখো, আত্মঘাতী জঙ্গি দেখো। ওরে বাবা, মাছ দেখো, মাংস দেখো, বাজার ভরা সবজি দেখো, মিষ্টির দোকান খোলা দেখো, ফুলের বাজার খোলা দেখো, মদও পাওয়া যাবে দেখো, লকডাউন চলছে দেখো। আরে আরে কও কি মামা? কাঁসর দেখো, ঘন্টা দেখো, নাচন আর কদন দেখো, সবার মনে ফুর্তি দেখো, জনতার কার্ফু দেখো। খাইছে রে। বাজার করার ছল দেখো, দামড়াদেরকে বাইরে দেখো, দোকানের চা খাচ্ছে দেখো, বিড়ি ফুঁকতে বাইরে দেখো, ধর্মের কত জ্ঞান দেখো। বাবা, ধর্মের কত জ্ঞান দেখো, ডাক্তারদেরকে মারছে দেখো, বেহেস্তে সব যাবে দেখো, পুলিশ বড়ই মানবিক, পাবলিক তাই নির্ভীক। এরাই আসল বিদ্রোহী। এদিকেতে ডাক্তারেরা কাজ করছে পিপি ছাড়া, তারা রোগে পড়বে যখন হবে গোষ্ঠীর সব সংক্রমণ। ওদিকে নাকি করোনা বেশি লোককে ধরছে না, সংখ্যা নামছে হুড়মুড়িয়ে, পরিষ্কার ডান্ডা দিয়ে। টান্না দিয়ে লকডাউনের আজব কিস্সায় আপনি ওকে নিচ্ছেন হিস্সা? আহা ছল করে জল আনতে আমি যমুনাতে যাই। কয়েক মাস পর করোনায় ভোগে আগের ভয়েস আর্টিস্ট ভোগে গেছে, তাই নতুন লোককে বিনি পয়সা চাকরিতে নেওয়া হলো। এখন সারা দেশে কারফিউ জারি, চারিদিকে নিঝুম বাড়ি, একা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ, এটাই এখন দেশের রেওয়াজ। পরিযায়ী শ্রমিকরা সব গ্রামে ফিরে মরেছে সব, কোটি কোটি মৃতদেহ, সৎকার করবার নেই কেহ। ঘরে মরে পড়ছে মানুষ, ঘরের লোকে গন্ধে বেহুশ, 5 জনেরই পরিবারে 4 জন মরল চুপি সারে। ডাক্তার বদ্যি সবাই উদ্ধাও, হাসপাতালে নেই কোথাও ডোম, পুলিশ সবাই ভোগে করোনারি রোগে ভুগে। মিষ্টির দোকান খা খা, ফুলের বাজার ফাঁকা, সবজি আনতো যারা শহরে, ওষুধ ছাড়া মরে বেঘরে। রাস্তায় ফেলা মৃতের শরীর, শিয়াল কুকুর খেতে অধের জল খাবার, বিদ্যুৎ বন্ধ, ঘরে থাকলে দম বন্ধ, বেরোলেই করছে গুলি সেনাবাহিনীর দল গুলি। ডাকা থানা দিনে দুপুরে, সাহায্য নেই কাছে দূরে, চলছে খুন খিদের জ্বালায়, দুর্ভিক্ষ ভাতের থালায়। চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, প্রাণের কোনো মূল্য নেই। মসজিদ মন্দিরে নমাজ ধর্ম বেচত যারা, ধর্ম কর্ম ডাক্তারদের মারত যারা, গোষ্ঠী শুদ্ধ নিপাতারা। সরকার হাত তুলে দিচ্ছে, মৃত্যু সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কোটি কোটি মানুষ মরল, বাকিরা প্রায় উন্মাদ হলো। এবার সব বাজার দেখো, মিষ্টি দেখো, ফুল দেখো, মদ দেখো, মাংস দেখো, নিজের বাচ্চার বডি দেখো, আত্মঘাতী মাকে দেখো, আরো দেখো, আরো দেখো, আরো 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 দেখো, আরো আরো দেখো দেখো। আহা ছল করে জল আনতে আমি যমুনাতে যাই। আহা যমুনাতে যাই, যমুনাতে যাই গো আমি, যমুনাতে যাই গো আমি, যাই গো যমুনায়। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है आदत में शुमार आपकी गलतियां ही इम्यून सिस्टम को करती है कमजोर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय समेत हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहा है।
मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में खतरनाक वायरस को प्रवेश करने और संक्रमित करने से रोकता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए केवल हेल्दी डाइट ही जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली में गलतियां करते हैं जो इम्यून को कमजोर करने का काम करती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। पहला, तंबाकू का सेवन। इस बात को हम सभी जानते हैं कि तंबाकू, टोबैको हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू एक जानलेवा उत्पाद है। इसके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। यह शरीर में फेफड़ों को खराब करते हुए इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। सेकंड, खुद के लिए समय ना निकालना। आजकल के लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। इसका प्रभाव इम्यूनिटी पर भी देखने को मिलता है। हर समय काम करने और उसके बारे में सोचते रहने से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। थर्ड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन। हमारे खान पान का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चीनी, नमक और रिफाइंड कार्ब्स से भरपूर चीज़ों का सेवन इम्यून को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। फोर्थ, शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना। व्यायाम को हमेशा स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना गया है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना व्यायाम करने से शरीर में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में इजाफा होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। फिफ्थ, शराब का सेवन करना। नियमित शराब के सेवन से इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहल आंत के फंक्शन को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि अपनी डेली रूटीन, दिनचर्या से शराब को बाहर कर दिया जाए। साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे जानना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। बाहर से लाए गए फल और सब्जियों से ना रहे संक्रमण का खतरा। इसके लिए ये काम जरूर करें। कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ हर दिन ही बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस वायरस से संक्रमित लोगों के लक्षण दिखने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। कोरोना वायरस का संक्रमण इसके मरीजों से तो फैलता ही है, इसके अलावा इस वायरस के संपर्क में आई वस्तुओं और सतहों में भी संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में अक्सर ये डर बना रहता है कि बाहर से लाई गई खाद्य सामग्रियां से ये वायरस कहीं घर पर तो नहीं आ जाए। ऐसे में आज हम आपको फल और सब्जियों से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह बात करते आ रहे हैं कि
रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों से कोरोना के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। हमें इन चीजों का इस्तेमाल बिना किसी डर के करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर फल सब्जी या कोई सामान देने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो तो उसके माध्यम से कोरोना घर में भी आ सकता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि फलों और सब्जियों को खरीदने और घर पे लाने के बाद सुरक्षा का किस तरह ख्याल रखा जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। घर के थैले का इस्तेमाल ना करें। विशेषज्ञ के मुताबिक दोबारा प्रयोग में लाए जाने वाले कैरी बैग से संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि इनमें वायरस अधिक देर तक जीवित रहते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप दुकान से ही थैला या प्लास्टिक ले और घर आते ही उसे फेंक दें। केमिकल्स के प्रयोग से बचें। कई लोग वायरस की शंका दूर करने के लिए क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल जैसे केमिकल का प्रयोग कर सब्जियां को धो देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग साबुन या डिटर्जेंट वाले पानी से सब्जियां को धोते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। ये चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इस तरह करें सफाई। सब्जियां और फलों को साफ करने के लिए पानी ही पर्याप्त है, लेकिन सफाई के वक्त आपको कुछ बातों को खास ध्यान रखना चाहिए। सब्जियां और फलों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। इसे काटने के बाद धोने से पौष्टिकता कम हो जाती है। सब्जियां और फलों को हमेशा किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर एक एक करके धोएं। इसके अलावा आप चलते हुए नल के नीचे एक एक कर रगड़ कर धोएं। अगर आपके पास पानी की कमी है या बहुत कम पानी में फलों और सब्जियों को धोना चाहते हैं तो एक आसान सा तरीका यह है कि आप एक बड़े कटोरे में पानी लें और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। अब फलों और सब्जियों को इसमें डुबोकर अच्छी तरह साफ कर लें। जिन फलों सब्जियों का छिलका निकालकर इस्तेमाल करना है उन्हें भी पानी में छिलके सहित अच्छे से धोकर ही छीलना या काटना चाहिए। यहाँ कुछ किचन टिप्स बताए जा रहे हैं जिसका रखें ध्यान। अगर आप बाहर से दूध का पैकेट लाए हैं तो उसे पानी से अच्छे से धो लें। किसी भी तरह के पाउच या पैकेट को दांतों के द्वारा फाड़ने से बचें। मांस को हमेशा तेज आंच पर अच्छी तरह पकाकर खाएं। फ्रिज में हमेशा पके हुए फूड्स को अलग और कच्चे फूड्स को अलग रखें। इन दिनों छिलके सहित चीजों का सेवन करने से बचें या उन्हें पकाकर ही खाएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। স্বার্থপর হন, ভীষণ ভীষণ স্বার্থপর। এই সময়ে ডাক্তার, সিস্টার সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য দিন। তাদের আগলে রাখুন, তাদের সুরক্ষিত রাখুন। পরে ফের ওদের কলার চিপে টেনে হিঁচড়ে মারা যাবে রোগী মৃত্যু হলে। আউটডোরে লম্বা লাইন বলে চুলের মুঠি ধরা যাবে, কসাই বলে খিস্তিও করা যাবে। এখন শুধু ওদের বাঁচিয়ে রাখুন নিজেদের স্বার্থে। স্বার্থপর হন, ভীষণ ভীষণ স্বার্থপর। ভাবুন তো, ভারতের সমস্ত ডাক্তার একদিন মারা গেল, সমস্ত নার্স পরপর অসুস্থ হয়ে ভেন্টিলেটরে। কারা চিকিৎসা করবে তখন? করোনার চোখে চোখ রেখে কারা স্টেথোস্কোপ হাতে লড়বে? তাই স্বার্থপর হন। সীমান্তে সেনাবাহিনী দেখলে আপনার গলার কাছে যেমন দলা পাকিয়ে আসে, স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখলে সেইভাবে স্যালিউট দিন, নিজের পক্ষে হাততালি দিন। এ লড়াই কিন্তু কালাশানিকভ দিয়ে জেতা যাবে না।
এ লড়াইয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদেরই একমাত্র প্রয়োজন, তাই স্বার্থপর হন। আপনি ডোনাল্ড ট্রাম্প হতে পারেন, আপনি আম্বানি হতে পারেন, আপনি শাহরুখ খান হতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন এত অল্প সময়ে আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানটা আয়ত্তে আনতে পারবেন না। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষিত রাখুন। এই লড়াইটা লড়তে যা যা দরকারি সেটা দিন ওদের হাতে। পারলে 2-1টা পিপিই কিট বেশি করে দিন। মাথায় রাখুন, যদি ওনাদের ঢাল তরোয়াল ছাড়া যুদ্ধে পাঠান আর সেই যুদ্ধ যদি ওরা হেরে যায়, আমাদের এই মহান দেশ কিন্তু মৃত্যুপুরী হয়ে যাবে। তাই ভীষণ 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 স্বার্থপর হন। এই সময় ডাক্তারদের একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিন। মাথায় রাখবেন, ওরা কিন্তু ভগবান নয়, ওনারা ভগবান হতে পারবেনও না। ভগবান তো মিরাকল করতে পারে, আর ডাক্তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবধি লড়ে যেতে পারে কাউকে বাঁচানোর জন্য। ডাক্তারও হেরে যায়, ডাক্তারেরও ডিপ্রেশন আসে, তাই পাশে থাকুন। খোঁজ নিন স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে বাজারটা হচ্ছে কিনা, বৃদ্ধ কেউ আছে কিনা, বাড়ি সবাই ভালো আছে তো। ওনারা এসব ভাবতে ভাবতে যত চিকিৎসা করবে, শত্রু কিন্তু তত দশাশয়ী হবে। আখেরে আমাদের লোকসান। তাই প্লিজ স্বার্থপর হন। ইটালি, আমেরিকা, স্পেনের সব কিছু আছে, সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকার পরেও, প্রাচুর্য থাকার পরেও রোজ রোজ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, কারণ ওখানে ডাক্তাররা সংক্রামিত। একজন ডাক্তার অসুস্থ হয়ে যদি ঘরে চলে যায়, 1000 লোক বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকবে। নেতা, অভিনেতা, জাদুকর, গুরুজি, জ্যোতিষী কেউ না, স্রেফ একজন স্বাস্থ্যকর্মী আপনাকে প্রাণে বাঁচাতে পারে। তাই কাল একবার স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে কি খোঁজ নিন না, ঠিক যেভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের খোঁজ নিচ্ছেন। ডাক্তার নিজে বাঁচলে বাকিরা বাঁচবে। কাল থেকে পারলে স্বাস্থ্যকর্মীদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা হাই রিস্ক জোনে কাজ করছে, সামান্যতম প্রোটেক্টিভ গিয়ারও পাচ্ছে না, তারা নিজেদের জীবন বিপদে ফেলছেন। তাই স্বার্থপর হন। ডাক্তারদের অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে যারা, তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করুন। দিল্লিতে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের জন্য 5 তারা হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত পরিষেবা, খাবার দাবার ভিভিআইপিদের মতো প্রদান করা হচ্ছে। মুম্বাইয়েও তাই। তাজ হোটেল থেকে সরকারি হাসপাতালের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য দুপুরের খাবার যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে ভিভিআইপির মতন আচরণ করুন। পৃথিবীর অসুখ সেরে গেলে স্বাস্থ্য খাতে যেন আরো টাকা বরাদ্দ হয়, সেটার ব্যবস্থা করুন। गुड मॉर्निंग। जैसे हम सबको पता है लॉकडाउन आज या कल में या 10 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो इस बीच हमें क्या करना है ताकि हम बाहर भी निकलेंगे और इन्फेक्शन भी होगा तो हमें नुकसान सबसे कम हो। एज वी ऑल नो कोरोना वायरस जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं आया है अभी तक, वैक्सीन नहीं आया है अभी तक। तो इन दिस सिनेरियो, और सबको पता है कि इट इज़ वेरी इन्फेक्टिव, तो इन दिस सिनेरियो हम लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बाहर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होगा। तो हम क्या करें ये 10 दिनों में ताकि हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, और अगर हमें इन्फेक्शन भी हो जाए तो हमें नुकसान कम से कम हो और हम वेंटिलेटर पे ना जाएं। ये हम कैसे कर सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो रेगुलर सबको करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी किसके लिए है बोले तो जिन्हें ब्रोंकियल आस्थमा है, दम्मे की बीमारी जिसे है, जिन्हें डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, जिन्हें हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, जिन्हें ओल्ड एज जैसे हैं उनको, और यही जो हाई रिस्क पेशेंट हैं जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, हुक्का पीते हैं, इन सब को हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे ये लोग को भी लंग की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग अगर इन्फेक्शन भी अगर आ जाए लॉकडाउन के बाद में, अगर ये बाहर जाएंगे इन्फेक्शन भी आ गए तो ये लोग वेंटिलेटर पे ना जाए, जस्ट ऑक्सीजन सपोर्ट से इनका काम हो जाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है। जनरली हमें 100% जो लंग है उसमें हम 60% तक कैपेसिटी ही यूज़ करते हैं 40% अनयूज्ड रहता है। तो जो अनयूज्ड लंग है जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं, उसमें जो एल्वियोले हैं वो कोलैप्स रहते हैं लगभग। तो उन्हें रीएक्टिवेट करना है। कैसे रीएक्टिवेट करना है हम आपको एक्सरसाइज के द्वारा बताएंगे। ये डॉक्टर ब्रदर आनंद है, ये आपको बताएंगे कि कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। ऐसे सांस अंदर लेना है छाती भर के, उसके बाद में धीरे से छोड़ना है, उसके अंदर फिर सांस लेना है, फिर धीरे से छोड़ना है।
ऐसा करने से क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट है लंग का ये एरिएट होगा, आगे पीछे और जो ऊपर है ये एरिएट होगा। लेकिन जो आगे पीछे और जो नीचे की तरफ जो लंग है आगे और पीछे, उसमें पूरा खून भरा हुआ रहेगा, इसलिए वहाँ पर एयर नहीं जाएगा। तो इसे हम कैसे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात क्या है, जो छाती है उसमें ज़्यादातर अधिकतर हिस्सा जो सामने तरफ है उसमें हार्ट रहेगा और कम लंग रहेगा, बाकी का पूरा लंग पीछे की तरफ रहेगा। तो पीछे के तरफ के लंग को हमें सबसे ज़्यादा एरिएट करना है। तो कैसे करना है ये ब्रदर बताएंगे आप। इसे प्रोन पोजीशन बोलते हैं। प्रोन पोजीशन में जाकर हमें सांस छाती भर के लेना है ताकि ये जो पूरा लंग है ये पूरा एरिएट हो। ऐसे छाती भर के सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसे आपको दिन में 5 बार करना है एक्सरसाइज। और हर साइकिल में जो 5 बार में हर एक साइकिल है उसमें कम से कम 3 से 5 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। ऐसे करने से क्या होगा, लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो एल्वियोले कोलैप्स हैं वो बढ़ेगा। और एक क्या है, जब हम घर में बैठे हुए हैं तो एल्वियोले जिसमें बलगम है उसे भी बलगम बाहर निकाल के वो एल्वियोले को भी हमें एक्टिवेट करना है। तो कैसे करना है, अगर मास्क नहीं है घर में बैठे हुए हैं तो हम टी शर्ट के अंदर ही ऐसे खांसेंगे, उसके बाद में लंबा सांस लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, जो एल्वियोले के अंदर जो बलगम है वो बाहर आएगा और वो फिर लंबा सांस लेने से वो फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह और लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे उल्टा लेट के जो सांस लेंगे उसके वजह से भी लंग की कैपेसिटी जो पीछे जो मैक्सिमम लंग है वो एरिएट होगा, सामने होगा। एंड ऐसे करने से क्या होगा, पेशेंट हाइपॉक्सिया में नहीं जाएगा अगर इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइपॉक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी ब्लड में, तो ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उसे। और ज़्यादातर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन तक ही जाएंगे, सीमित होकर वापस आ जाएंगे। क्योंकि 80% पेशेंट को जो कोविड इन्फेक्शन होता है उसमें 80% पेशेंट को सिर्फ सर्दी जुकाम जैसे होगा और 15% लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 5% लोग को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो लोग अगर हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो हम वो 5% के श्रेणी में नहीं आएंगे। অভিশাপে নাকি গরিব জন্ম, আশীর্বাদে ধনী। মধ্যবিত্তকে জীবনভর থাকতেই হয় ঋণী। সুদিন আসুক কিংবা দুর্দিন চিত্রটা একই থাকে। বুক ফাটে তবু মুখ ফাটে না, সম্মান বোধে লাগে। গরিবের তবু সরকার আছে, গরিবের তবু সরকার আছে, ওরা আছে বিন্দাস। সরকারি সেবাদাতাদের দানে কেটে যাবে কয় মাস। ওদের বিনা পয়সায় চাল আলু মেলে, সাথে রান্নার গ্যাস, বাকি প্রয়োজন মেটানোর তরে ব্যাংকে মিলছে ক্যাশ। ওরা কর্মবিহীন অর্থবিহীন দুহাত পেতে নিতে, শিক্ষার ঝুলি শূন্য ওদের লাগে না সম্মানেতে। ধনীর আছে অগাধ অর্থ, খাদ্যের উদ্বৃত্ত, অভাবের জলে হাঁসফাঁস প্রাণ, শুধু কাঁদে মধ্যবিত্ত। ওদের নেই সরকারি দান কিংবা দ্রব্য অল্প মূল্যে, ধনীর দামেই কিনতে হচ্ছে টান পরে সাকুল্যে। কবি একা কাঁদে শুকনো পেটে, কাঁদে কলমের ডগায়, বাচিক শিল্পী পেটে গিট বেঁধে একা কবিতাটা ওড়ায়। গৃহশিক্ষক বেতনবিহীন পারেনি কো যেতে পড়াতে, নির্বাক স্ত্রী চেয়ে থাকে শুধু শূন্য চালের হাঁড়িতে। শিল্পীর তুলি একা ক্যানভাসে রঙের মূল্য ভারী, শিল্পীর তুলি একা ক্যানভাসে রঙের মূল্য ভারী। ক্ষুধার্ত ছবি পড়ে এক কোণে, কে দেবে মূল্য তারি? মৃত্যুর ভয়ে পথ ছাড়া সব, সব জমায়েত বন্ধ। শ্রোতা দর্শক অভাবে শিল্পী, সুরেরা হয়েছে অন্ধ। তবলচি ঘরে একা তবলায়, তবলচি ঘরে একা তবলায় কেটে যায় সুরতাল। মনে হাহাকার, কি হবে কালকে, ফুরিয়ে যাচ্ছে চাল। বিদ্যার ধনে যত হও ধনী, যদি না থাকে অর্থ, বিদ্যার ধনে যত হও ধনী, যদি না থাকে অর্থ, মধ্যবিত্তের তকমা জড়িয়ে জীবনটাই হবে ব্যর্থ। देखिए हरिद्वार का ये ब्रह्म कुंड, एक वक्त था जब हजारों लाखों यात्री
आस्था की एक डुबकी लगाया करते थे। यहाँ पैर रखने की और तिल धरने की यहाँ जगह नहीं होती थी। लेकिन आज देखिए कैसा वक्त आया है। इस वक्त ने पूरी दुनिया में सन्नाटा कर दिया। आप हरिद्वार के हालात देखिए कैसे हैं। हरिद्वार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि आप अपने घर में रहिएगा। चूँकि हम पत्रकार हैं, हमारी मजबूरी है आपको हर खबर से खबरदार करना, बताना आपको कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उस हर खबर पर हम लोगों की नज़र है। ये हरिद्वार का हर की पौड़ी क्षेत्र है और देखिए सन्नाटा। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड, यही लगती थी आस्था की डुबकी और यही होती है हर शाम सुबह गंगा जी की आरती। गंगा जी का जल देखिए, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा का ऐसा जल देखने को भी नहीं मिला था। लेकिन कुदरत का नज़ारा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम गंगा जल। माँ गंगा, आप खुद देखिएगा, ये कुदरत है, न्याय करती है। आप देखिए कितना सुंदर, निर्मल, कोमल, शीतल जल, साफ सुथरा। अब देखिए कैसे हम पैड़ी तक को हम आपको दिखा सकते हैं कि बिल्कुल इतना साफ सुथरा जल, पैड़ियाँ भी साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। हम और इसको अगर आगे ले जाएं, देखिए कि बिल्कुल साफ सुथरा जल। यही है माँ हर की पौड़ी, माँ गंगे। बिल्कुल सन्नाटा। ये हमारा हरिद्वार का महत्वपूर्ण घंटाघर। चलिए हम फिर से आपको एक बार फिर हर की पौड़ी माँ गंगा के दर्शन करा दें। जय माँ गंगे, हर हर माँ गंगे।